Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, ma'am. afternoon. Right. Uh, First of all, am very thankful to everyone to join this prestigious webinar, the first Healthcare Insight series, the initiative under the Healthcare Sector Skill Council. First of all, I request everyone to please stay on mute so that we all could hear the speaker, the August speaker, to what all things they are sharing with us. Please stay on mute, everyone. During the session, please stay on mute. If you have any queries, you can post your queries on the chat box. So, and our team would ask those questions during the question answer session. And we would also give few members to raise your questions in interactive mode with the speaker as well. I'd like to invite our speaker, Physio Anant Singh Gaur. He is a seasoned physiotherapist with a specialization in neurology and having a 15 years of experience in the academic and the clinical settings. Currently, he is serving as the senior physiotherapist at Ayush department. Am I not audible to everyone? Ma'am, you are very much audible. There might be some signal glitch somewhere, so that may be a case, but you are very much audible, ma'am. Okay, thank you so much, sir. So currently, our speaker, Physio Anant Singh Gorji, he is currently serving as the senior physiotherapist at Ayush department in Government Homeopathic Medical College and Hospital in Bhopal. And he also holds the MPT degree in neurology and pursuing a PhD. He's a PhD scholar in neuro rehabilitation. He is working as an advisor at Physicure Healthcare, which is an August organization, a team of physiotherapy experts, the aggregation of the team of the physiotherapy experts all over India. I welcome my August speaker, Mr. Anant Singh Gaur, to take over the session and start his webinar with the topic of role of family members in the rehabilitation of stroke. Thank you so much, sir. I really welcome you. Over to you. Thanks a lot, ma'am. First of all, I would like to thank all the officials of Healthcare Sector Skill Council. It's really an honor to deliver such a seminar. Now, आज हमारे पास में काफी हद तक मिक्स्ड ऑडियंस है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बोलना चाहूँगा. आई थिंक दैट विल बी much more relevant because we are having few patients also, family members of patients also as an audience, as I can see over here, and professionals also. If someone is having any difficulty in Hindi, not able to understand that please raise your hand. I'll try to mix as much as possible. But our main purpose is to deliver the message, deliver the content to the people, those who are really in need. So the family members are our main beneficiaries. Apart from that, the other healthcare professionals, I really welcome you all for your precious time for this particular webinar. So this is Physio Anant. I'm going to share my slide right now. Ma'am, are you able to see my screen? Everyone able to see my screen? Yes, Mr. Anant, your screen is visible. Yeah. And would request everyone to be on mute, and if possible to switch off your camera, that will be really great. So we will be having an uninterrupted session as much as possible. So this is our first, just a minute. Yeah. Sorry to interrupt, just one
Mr. Anand. Yeah. Everyone, all the members, please hear Mr. Anand's teachings very carefully. We would be having the exciting poll question session where we would be asking the questions as well from the audience. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. That will be really exciting. A two-way communication and interactive session we are hoping today. So once again, I would like to welcome all the delegates, all the participants, and all the senior professionals and colleagues in healthcare sector, and a family member of patients or patient themselves. So we are having very mixed audience today, as I can see very well. So for today, I would like to ask one thing: why we are here? हम आज यहाँ पर क्यों हैं? हम आज यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं और उसका इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं? पिछले 15 सालों के एक्सपीरियंस में हमने देखा, जनरली मेरी 15 साल की एक्सपीरियंस है न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी में, जब कभी भी फैमिली मेंबर्स ने अच्छा सपोर्ट किया है पेशेंट को, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जब कभी भी फैमिली मेंबर्स ने अच्छे से सपोर्ट किया है पेशेंट को, उस पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छे से हुई है। और ये जो सेंटेंस है ये अनुभव के साथ आया है, पिछले 15 सालों के अनुभव के साथ आया है। जनरली हम कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फैमिली मेंबर सपोर्ट करें, फैमिली मेंबर ऐसा करें वैसा करें, लेकिन कभी भी इस बारे में नहीं सोचते कि फैमिली मेंबर को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए जो सिचुएशन है, जो उस समय की परिस्थिति है, वो काफी हद तक नई है। वो चाहते हैं, वो अपना तन मन सब कुछ लगाकर पूरी मेहनत से पेशेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता ये, और यही कारण है कि वो जनरली भटक जाते हैं बहुत सारी चीजों में, वो भटक जाते हैं। सो ये हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ड्यूटी है कि अगर हमें हमारा चौथा पिलर रिहेबिलिटेशन का, खासकर उन कंडीशंस में जैसे कि पैरालिसिस, कैंसर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, जिन कंडीशंस में पेशेंट काफी हद तक बिस्तर पे आ जाते हैं और एक डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, उन कंडीशंस में तो खासकर फैमिली मेंबर्स की एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का वेबिनार हम इसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सारी टेक्निकल चीजों को एक तरफ रखते हुए फैमिली मेंबर्स में क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, फैमिली मेंबर किस तरह से काम करना चाहिए, उसके बारे में। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। आज भी मुझे याद है 2019 जनवरी में हम लोगों ने सबसे पहले एक सेमिनार किया था, 6 दिन का सेमिनार था, जिसमें हमने लगभग 70 फैमिलीज को, स्ट्रोक पेशेंट की 70 फैमिलीज को 6 दिन तक ट्रेन किया था, हर एक अलग अलग आयाम के ऊपर, फ्रॉम हाइजीन टू फंक्शनल एक्टिविटीज टू ईच एंड एवरीथिंग। एंड दैट पर्टिकुलर कैंपेन इज स्टिल रनिंग बाय द नेम ऑफ हम साथ हैं। Proud to say that my department is working for this particular campaign from last 4.5 years, and we are serving more than 800 patients, 800 patients virtually by training their family members either in that way. My team is quite strong in this particular segment, and they are really working hard, and their main purpose is to get aware, the family member get aware about what need to be done at what time. So this is the main essence जहां पे हम लोग आज के बारे में बात करने जाएंगे। Now सेकेंड पॉइंट, ये स्लाइड आपको काफी हद तक टेक्निकल दिख रही होगी। आज हम जो एक कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस और सिंपल सी भाषा में मैं समझाऊं तो आधे शरीर का पैरालिसिस, हेमीप्लीजिया टेक्निकल भाषा में बोलेंगे, सीवीए, जो चीज भी बोलनी है। टेक्निकल पीपल, दोज हु आर फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन, दे आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल अबाउट इट्स डेफिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। आई नीड नॉट टू टॉट देम वेरी वेल, बट दोज हु आर फ्रॉम द पेशेंट साइड, जो लोग पेशेंट साइड से आए हैं, उन लोगों के लिए आज हमारा एक मेन कंसंट्रेशन है पैरालिसिस को लेकर और फैमिली मेंबर का रोल को लेकर, पैरालिसिस, स्ट्रोक, सीवीए, हेमीप्लीजिया, आधा लकवा, इस कंडीशन के ऊपर। ये जो कंडीशन है इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट बताने के बजाय मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगा। जिस किसी भी घर में ये होता है वहां पर एक सडन चेंज आता है, ना केवल इकोनॉमिक स्टेटस से, ना केवल इमोशनल स्टेटस से, बल्कि बहुत सारे आयाम से। एक परिवार है, अच्छा खासा सब कुछ उनका डेली रूटीन चल रहा है, अचानक से परिवार के एक मेंबर को पैरालिसिस होता है। इट इज अ सडन ब्रेक, सडन सेटबैक, सडन क्वेश्चन, और यहां से बहुत सारे थॉट्स आना शुरू होते हैं फ्यूचर के बारे में, डिपेंडेंसी के बारे में। अब इस मरीज का, इस फैमिली मेंबर का देखभाल कैसे होगा, इनके आगे के जीवन का क्या होगा, खर्चे कितने होंगे, कहां पर जाना पड़ेगा, कब जाना पड़ेगा, किसकी सलाह लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, मैनी थॉट्स।
और ये सारे थॉट्स के साथ में जो बाकी के फैमिली मेंबर हैं, अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं विक्टिम बनते हैं, अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला जो बोलना चाहिए हॉरिबल एक्सपीरियंस रहता है, वो है स्ट्रोक आने के बाद में, दैट इज एंटायर कंफ्यूजन्स कि अब क्या करें। यहाँ पे सबसे पहला टेक होम मैसेज पूरी ऑडियंस को, चाहे वो पेशेंट की तरफ से हो चाहे कहीं दूसरे मेंबर्स हो, सबसे पहला टेक होम मैसेज मैं देना चाहूंगा, दैट इज टाइम इज ब्रेन। अगर हम आज के समय में अवेयर हैं, टाइम इज ब्रेन, ये वाली जो लाइन मैंने बोली, इसका मतलब ये है कि कभी भी पैरालिसिस के सिम्टम्स, स्ट्रोक के सिम्टम्स अगर आपको पता है, जरूरी नहीं कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जरूरी नहीं कि आप मेडिकल को बहुत अच्छे से समझते हैं, सिर्फ 4 या 5 बातें अगर आपको पता है, तो आप अपने घर में या घर के आसपास में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। स्ट्रोक के जो सिम्टम्स सबसे पहले पहचानने का जो तरीका है, जो टेक होम मैसेज है, टाइम इज ब्रेन, जो मैंने बोला, जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे उतनी जल्दी, उतना अच्छे से, उतना ज्यादा रिकवरी हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उतना कम सेल्स डैमेज होंगे, उतने कम सेल डैमेज होंगे और आगे के लिए हमारे लिए परेशानी रहेगी। सबसे पहला चीज यहाँ पर है, दैट नीड टू रिमेंबर इज बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब है, अगर किसी भी व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ रहा है, चलने में उसे तकलीफ हो रही है, या चलते चलते गिर रहे हैं, या अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, यहाँ पे कंसर्न है, हमें कुछ एक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार का विजन, आईज में कहीं पर भी, बी फास्ट, BEFAST, किसी भी प्रकार का विजन में अगर प्रॉब्लम आई है, तो डेफिनेटली वहां पे तुरंत कंसल्ट लेने का जरूरत है, तुरंत हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। अगर किसी का एक तरफ का चेहरा नीचे की तरफ गिर रहा है, हाथ उठाने में तकलीफ हो रही है, या उसको बोलने में, स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारे के सारे वो सिग्नल्स हैं, सबका कॉम्बिनेशन या 1 या 2 का कॉम्बिनेशन, हमें अस्पताल की तरफ तुरंत जाना चाहिए। जितनी जल्दी अस्पताल की तरफ जाएंगे, डेफिनेटली उतना अच्छे से रिकवर कर पाएंगे, उतना कम डैमेज होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि नियर बाय अस्पताल की फैसिलिटी को ढूंढना, जहां पे बेसिक सुविधाएं हो, जिससे कि इस प्रकार की तकलीफ में सारी जांचें और सारे इलाज बहुत अच्छे से हो सके। कुछ सिम्टम्स इसमें ग्रेजुअली आते हैं, कुछ सिम्टम्स एकदम से सडन आते हैं। कुछ पेशेंट्स में लगता है कि तुरंत, मतलब धीमे धीमे, आज पता चला उसका बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा रहा है, शाम तक होते होते चेहरा थोड़ा लटकने लगा। लेकिन कुछ पेशेंट में हो सकता है कि एकदम से चक्कर खा के वो गिर गए और हाथों पैर नहीं उठा पा रहे हैं। तो डिपेंड करता है। यहीं पर एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगा, जो मैं आगे वाली स्लाइड में बोलना था मुझे, दैट इज स्ट्रोक का या पैरालिसिस का हर एक पेशेंट अपने आप में अलग होता है। हम जनरली कंपेयर करते हैं कि वो फलाने वाला व्यक्ति जब वहां पे हॉस्पिटल गया था, वो तो 2 दिन में वापस आ गया, वो वाला हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, उसने लकवे को 2 दिन में ठीक कर दिया। हमारा मरीज 6 महीने से बिस्तर पे ही है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इलाज में कमी है और ज्यादा इलाज की जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ जो तोड़ने की जरूरत है, वो ये है कि हर एक पैरालिसिस का पेशेंट अपने आप में अलग होता है। क्यों? क्योंकि किसके दिमाग का कितना हिस्सा डैमेज हुआ है, उसके आधार पे सिम्टम्स आते हैं। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक एक तकलीफ है जिसमें 24 घंटे में पेशेंट हमारा ठीक होके बाहर आ जाता है। अब वहां पे बोला जाए कि दवाइयों ने काम कर दिया, फिजियोथेरेपी ने काम कर दिया, इसने काम कर दिया, उसने काम कर दिया, नहीं, वो कंडीशन ऐसी थी जिसमें वो 24 घंटे में रिकवर होके आ गए, टाइमली ट्रीटमेंट मिला, रिकवर होके आ गए। आप लोग प्लीज म्यूट रखिए, जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग म्यूट रखिए, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। सो दैट इज, ये व्यक्ति आ गया, लेकिन वहीं पे दूसरा व्यक्ति हो सकता है उसे कुछ समय तक अस्पताल में रहना पड़े, कुछ व्यक्ति को ज्यादा समय अस्पताल में रहना पड़े, और कुछ जो बहुत ज्यादा सीवियर है उन्हें ज्यादा समय के लिए अस्पताल में रहना पड़े। तो हर एक पेशेंट अपने आप में डिफरेंट होता है और उनके लिए अलग तरीके से इलाज करना चाहिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी इस तरह के सिम्टम जो मैंने यहाँ पे बताया कि पैरालिसिस के शुरुआती समय में आते हैं, उस समय पे किसी भी प्रकार की दवाई, आज का पूरा जो कंसंट्रेशन है हमारे वेबिनार का, वो घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को ध्यान में रखकर है। उन्हें क्या करना है, हेल्थ प्रोफेशनल्स को तो पता है कि उन्हें क्या करना है, हेल्थ प्रोफेशनल्स तो करते ही हैं अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन घर वालों को क्या करना है, इसके लिए ज्यादा अहमियत रखता है, ज्यादा चीजें हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि
क्या दवाई दी जा रही है, इसके लिए कंसर्न डॉक्टर्स के साथ सजेशन लेकर ही दवाई दी जाए। ना कि कई बार कुछ मिथ्स होती हैं कि किसी ने भांग चटा दी तो पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, किसी ने ये कर दिया, तो हम बहुत सारा समय जो शुरुआती समय होता है, जब अमूमन मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं बहुत देखता हूँ कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो लगभग 1-2 महीने तक तो उन्होंने कुछ इलाज ही नहीं कराया, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी वो नहीं थी, तो ठीक है, उनको लाइफ थ्रेट नहीं हुआ, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन 1-2 महीने तक उन्होंने किसी प्रकार का इलाज ही नहीं कराया, जिससे कि कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा वर्स हो गई, या फिर कोई दूसरी दवाइयां दी हैं जो रिकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ पे दवाइयां डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड दवाइयां खासकर इस प्रकार की तकलीफ में देना अति आवश्यक है। आपकी तरफ से सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन दवाइयां हमेशा डॉक्टर के रिकमेंडेशन से देना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 प्रकार के स्ट्रोक जनरली देखने को मिलते हैं। एक इस्केमिक, जब हमारे दिमाग की स्ट्रोक होता क्या है, मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ। स्ट्रोक में हमारे दिमाग में, ब्रेन में, जो हमारे पूरे शरीर को संभाल रहा है, चलाने का काम कर रहा है, सारी एक्टिविटी कर रहा है, वहां पे जो खून का संचार है, वो खून का संचार किसी भी वजह से अवरुद्ध हो जाए। कैसे अवरुद्ध होगा? या तो जो नलियां खून को पहुंचा रही हैं वो फट जाए, हेमरेजिक, या उनमें किसी प्रकार का थक्का जमा हो जाए, या किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाए, दैट इज इश्केमिक। टाइप पे बहुत ज्यादा हमें नहीं जाना है। जब भी हम फैमिली मेंबर्स को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं तो कभी भी बहुत ज्यादा टेक्निकल घुसने की जरूरत नहीं है कि फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है, पैथोलॉजिकली क्या हो रहा है, लेकिन उस समय पे हमें क्या करना है, आपका जो रोल है एज अ सोल्जर, एज अ टीम मेंबर, वो रोल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रोक किसी भी प्रकार का हो, इसका डायग्नोसिस करने की जिम्मेदारी न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, इन लोगों की है, हॉस्पिटल की है, वो अपना काम करेंगे। आपका काम है कि अगर आपको कोई ऐसा मरीज दिखाई देता है जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि उसके चेहरे पे चेहरा लटक रहा है, हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आंखों में थोड़ा धुंधलापन आ गया है, उस समय पे आपका मेन काम है उसे सही हॉस्पिटल पे पहुंचाना, जिससे कि उसे टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके और उसको काफी हद तक संभाला जा सके। नेक्स्ट, ये वाले पॉइंट पे जब हमने टाइमली पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। इस रोल में है हॉस्पिटल के अंदर का सेटअप। हॉस्पिटल के अंदर के सेटअप में हमारे पास बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं कि बहुत सारे लोग आपस में आके सजेशंस देना शुरू करते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। उस समय पे मेरी तरफ से सिर्फ एक सजेशन है फैमिली मेंबर्स के लिए कि डेफिनेटली ट्रस्ट योर ट्रीटिंग टीम। आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को आपके ट्रीटिंग टीम, आपके डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, उन जिज्ञासाओं को उनसे ही पूछें। उनसे जितना ज्यादा विचार विमर्श कर सकते हैं, जितना ज्यादा उनसे बातें कर सकते हैं, वो करें। क्योंकि अगर किसी अनट्रेन्ड व्यक्ति से या एक्सपीरियंस व्यक्ति से या एक अनप्रोफेशनल व्यक्ति से आपने बातें की और उसने अपना सजेशन दिया अपने खुद के अनुभव के आधार पे, जो उसका अनुभव 1 या 2 मरीजों के ऊपर होगा, मैं कहता हूं चलो 10 मरीजों के ऊपर भी होगा, लेकिन वो अनुभव किसी भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल या क्वालिफाइड डॉक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उस समय पे पूरा ट्रस्ट करते हुए कि आपके जो डॉक्टर्स या आपकी जो ट्रीटिंग टीम है, नर्सिंग स्टाफ है, जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से समझ के हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें डॉक्टर्स की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की मदद करनी है, उसमें रोड़ा नहीं बनना। हम अपना ज्ञान अगर और लेकर आएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आना शुरू होगी। म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो भी अभी बीच में आ रहे हैं। हम अपना ज्ञान लेकर आएंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। सेकेंडली, अगर डॉक्टर से आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है, इस पर्टिकुलर सेटअप में आपका एक क्वेश्चन चल रहा है, आप कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस जितने पूछ सकते हैं उतना ज्यादा पूछिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा तकलीफ एग्जैक्टली है क्या, और आपकी तरफ से लिए जाने वाला डिसीजन काफी हद तक सही रहेगा। शुरू के 96 घंटे बहुत क्रिटिकल रहते हैं पैरालिसिस में। उन 96 घंटों में मरीज की जान के ऊपर बना रहता है, और वहां पे डॉक्टर्स का मेन काम रहता है कि उसकी उनकी जान प्लीज म्यूट कीजिए। कौन है? Everyone, please mute yourself. किसका नंबर है जो जिसमें आवाज आ रही है? प्लीज। அங்க ஒண்ணுமே மேல ஸ்டார்ட் मैम वुड रिक्वेस्ट कि अगर म्यूट नहीं होता तो प्लीज अगर उनको हटाना चाहें तो हटा दीजिएगा बीच में से, बिकॉज इट क्रिएट अ लिटिल डिस्टर्बेंस। ओके, सॉरी, बैक टू द ट्रैक।
सो बेसिकली शुरू के 96 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं पेशेंट्स के लिए, जिस समय पे जान बचाना इंपॉर्टेंट होता है, और वहां पे न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, आईसीयू के स्टाफ एंड एवरीवन इज पुटिंग देयर मैक्सिमम एफर्ट टू मेक देम मेक देम अलाइव, जिससे कि वो अपनी कंडीशंस को अच्छे से इंप्रूव कर सके। लेकिन यहीं पे हमारे फैमिली मेंबर का रोल पहले दिन से शुरू हो जाता है। सही समय पे सही जानकारी लेना और सही चीजों को लेकर जाना। कई बार देखने में आता है कि फैमिली मेंबर्स यहाँ पे कुछ बोलते हैं कि जैसे ही उन्होंने डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं ये वाला ट्रीटमेंट करना है, तो उस जगह पे दूसरे सजेशंस की वजह से, नॉन क्वालिफाइड लोगों के सजेशन की वजह से जनरली उन ट्रीटमेंट को हम लोग स्किप करते हैं। तो दैट शुड नॉट बी, यू शुड ट्रस्ट योर टीम एज मच एज पॉसिबल। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आईसीयू के अंदर पेशेंट है, डेफिनेटली शुरू का समय आईसीयू और हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, लेकिन हमारा जो रोल है वो शुरू होता है कि कितनी जल्दी हो सके इस पेशेंट को मोबाइल बनाना। हमारा जो शरीर है वो एक सिंपल से प्रिंसिपल पे चलता है, यूज इट और लूज इट। अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति अपने हाथ पैरों को नहीं चला रहे हैं, लंबे समय तक बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मांसपेशियों में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। अगर किसी भी मरीज का हॉस्पिटल में स्टे लंबे समय तक है और वहां पर किसी भी प्रकार का मूवमेंट या किसी भी प्रकार की थेरेपी नहीं हो रही है, एक्सरसाइजेस नहीं हो रही हैं, तो अल्टीमेटली वो वीकनेस कहीं ना कहीं पे बढ़ना शुरू होती है। ना केवल वीकनेस बढ़ना शुरू होती है, अगर मोबिलिटी कम है तो उन जगहों पे लंग्स के अंदर कंजेशन बनना, डीवीटी, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं। यहाँ पे जब हम मरीज के पास जाते हैं तो आपके मेडिकल टीम के साथ कंसल्ट लेके कि कौन कौन से मूवमेंट कराना आसान है। सिर्फ खाली पेशेंट के पास बैठने से बेहतर है कि जो मूवमेंट बताए गए हैं, अगर हाथ पैरों का मूवमेंट बताया गया है या कोई मूवमेंट बताया, आपके फिजियो ने कोई मूवमेंट बताया है, तो वो मूवमेंट को प्रैक्टिस करवाएं, सही तरीके से लर्न करने की कोशिश करें, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन को बचाया जा सके। ना केवल सिर्फ बैठकर सिर्फ ये चीज का वेट करना कि नहीं अभी ट्रीटमेंट हो रहा है, मेडिकल टीम अपना देख रही है, वो अपना काम कर रही है, सिर्फ इतना ना करते हुए डेफिनेटली वहां पे हम अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है हॉस्पिटल के अंदर दूसरे प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस को बचाना। जितना ज्यादा हम कॉम्प्लिकेशंस को बचाने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लिकेशन कैसे, जैसे पैरों पे के पास जो नली रहती है, उस नली में, जस्ट अ मिनट, मैं एक, पैरों के पास जो नली रहती है उस नली में खून का थक्का जमना यानी डीवीटी एक कॉमन सा कॉम्प्लिकेशन रहता है, अगर काफी समय तक पैर शिथिल अवस्था में पड़े हुए हैं। तो वहां पर एक सिंपल सा पिंडली को दबाना एक छोटा सा एक्टिविटी है, जो आप अपने क्या नाम है मेडिकल प्रोफेशनल या जहां कहीं भी हॉस्पिटल में एडमिट है, एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हम कहीं ना कहीं पे एज अ फैमिली मेंबर हेल्प कर सकते हैं मेडिकल टीम को, अपनी तरफ से एक एफर्ट लगाकर हल्की सी पिंडली को अगर दबा रहे हैं तो डेफिनेटली डीवीटी के चांसेस कम हो जाते हैं। जो परमिजिबल मूवमेंट है, अगर उन मूवमेंट को करवाने के लिए, चाहे आप वार्ड में हो चाहे कहीं पर भी हो, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मूवमेंट परमिजिबल होते हैं। फिजियो अपना काम करते हैं, फिजियो आके आपको सिखा के जाते हैं, लेकिन फिजियो अपना एक सेशन करके जाएंगे, बाकी के समय पे आप अपने मरीज के साथ में हैं। बाकी के समय पे नर्सिंग स्टाफ भी वहां पे अपना केयर कर रहा है, उनका अपना एक रोल है, लेकिन हल्के फुल्के मूवमेंट अगर आप अपनी तरफ से करने लगेंगे तो आई एम वेरी श्योर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, फिजियो और उसके साथ में फैमिली मेंबर, ये चौथा मेंबर जो है वो रिहेबिलिटेशन टीम या ट्रीटमेंट टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। इसीलिए मेरा हमेशा से मानना है कि फैमिली मेंबर को बताना कि आप इतना काम कर लीजिए, क्योंकि लगभग 24 घंटे आप पेशेंट के साथ में किसी ना किसी तरीके से हैं। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट चीज जब हम हॉस्पिटल के अंदर हैं, और हमेशा क्यूरियस होना कि अब आगे क्या, हमें अल्टीमेटली एक टारगेट बनाना है। एक प्रॉब्लम तो आया, एक सेटबैक तो आया, जिस सेटबैक में पैरालिसिस हुआ, लेकिन इससे जब हमें रिकवर करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने टारगेट्स को सेट करना रहेगा। कॉमनली देखने में आता है कि पेशेंट आईसीयू के अंदर है, वार्ड के अंदर है, और वहां पे फैमिली मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन होने लगती है कि ये तो चल नहीं पा रहा, इसे चलाने का प्रयास करो अभी के अभी। इसे किसी ना किसी तरह, वार्ड के अंदर पेशेंट है तो पता चलता है कि 2 नर्सिंग स्टाफ या कोई भी लोग, चूंकि पेशेंट के फैमिली मेंबर जिद कर रहे हैं कि इनको चलाने का प्रयास करो, लेकिन वहां पे आपने एक सेट, अपना एक टारगेट सेट नहीं किया कि क्या ये इंडिपेंडेंटली बैठ पा रहे हैं। अगर वो इंडिपेंडेंटली बैठ पा रहे हैं तो सबसे पहला टारगेट वही से, इंडिपेंडेंटली अगर बैठ पा रहे हैं तो क्या ये बिना सहारे के खड़े हो पा रहे हैं, क्या ये बिना सहारे के खड़े हो पा रहे हैं तो अपनी जगह पे 2-4 कदम रख पा रहे हैं, मार्च कर पा रहे हैं।
तब हम आगे की तरफ बढ़ने का सोचें, तब हम आगे की तरफ करने का सोचें। इस तरह से छोटे छोटे टारगेट्स बनाना जरूरी है, और उन टारगेट्स के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो दैट विल हेल्प अलॉट। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, जो है कि डेफिनेटली इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट तो देना ही देना है। पेशेंट का जो मोरल है वहां पर नेगेटिव बातों का जितना कम से कम इस्तेमाल हो। एक प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन इस प्रॉब्लम में अगर हम बार बार प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है उसके अंदर भी एक नेगेटिव प्रॉब्लम, नेगेटिव चीज आना शुरू होती है। मैं उन लोगों को हटाता जा रहा हूं जो म्यूट नहीं हो रहे हैं। जो म्यूट नहीं हो रहे हैं वो प्लीज ज्वाइन नहीं करें, म्यूट जो नहीं हो पा रहे हैं। आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। मैम प्लीज एक बार म्यूट का देख पाएंगे क्या? कोई एक व्यक्ति म्यूट के लिए देख पाएंगे? Sir, we are seeing that. You continue. या श्योर मैम, थैंक यू मैम। सो बेसिकली ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जिस प्रकार का नेगेटिव, वो व्यक्ति जो जिसको ये प्रॉब्लम हुआ है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पे अपने अंदर, हो सकता है वो फैमिली, पूरे फैमिली मेंबर में इकलौता अर्निंग मेंबर, हो सकता है वो फैमिली मेंबर एक लौता ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे घर को संभालता हो। तो वहां पर एक सेटबैक तो आया है, लेकिन अगर उसके साथ में हम प्रॉब्लम्स को ही अगर हर दिन डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमनली देखने में आता है वो रहता है एडहेरेंस टू रिहेबिलिटेशन, यानी हमारा जो इलाज है उसकी तरफ एडहेर बने रहना, उसकी तरफ पक्का बने रहना। कॉमनली देखने में मिलता है, जैसे हम लोगों का मन बहुत चंचल होता है, हमें जहां पे जो बोल दे कि आपको यहाँ पे इलाज पूरा मिल जाएगा, या कोई भी व्यक्ति क्वैक्स हो या कोई कोई ऐसी जगह पे कोई व्यक्ति हो जो ये बोल दे कि नहीं आप हमारे पास आ जाओ, इतने दिन का कोर्स करो और आपका पूरा ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो हमारा बहुत जल्दी मन मान जाता है कि नहीं उन्होंने बोला है कि ठीक हो जाएंगे, तो हम इस ट्रीटमेंट की तरफ जंप कर जाते हैं। तो 4 दिन हम वो ट्रीटमेंट करते हैं, 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीने भर वो ट्रीटमेंट करते हैं, और जैसे ही वो ट्रीटमेंट में हमें इलाज नहीं मिलता, समझ आता, तो हम दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ जंप कर जाते हैं। यहाँ पे मेरा सब लोगों के ஒரு சிலர் ஸ்லைடு வச்சு வச்சிருப்பாங்க அடுத்தடுத்து போகல இதவே தான் இல்ல ஹிந்தில நம்ம பார்த்தேன்னா यहाँ पे सब लोगों के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि डेफिनेटली जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ ही हम लोग कनेक्ट करें, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे चलें। जब कभी भी कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उनसे समझें कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करें, वनस्पत इसके कि हम तुरंत जंप कर जाएं एक ट्रीटमेंट से दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ। ये हमें प्रॉब्लम करता है हमेशा। डेफिनेटली हमें हमारे ट्रीटमेंट की तरफ में कंटिन्यू रहना है। मॉनिटरिंग एंड असिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि जो इलाज चल रहा है, जो भी चीज हो रही है, मरीज के साथ सबसे ज्यादा समय कौन रहेगा? फैमिली मेंबर वाले ही रहेंगे, फैमिली मेंबर्स ही रहेंगे मरीज के साथ हमेशा। यहाँ पे हमारी जो मॉनिटरिंग है या हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मरीज में आने वाले छोटे छोटे चेंजेस अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, हर किसी को लगता है कि वो फटाक से जल्दी से रिकवर कर जाए, या हमारा मरीज बहुत जल्दी रिकवर कर जाए, लेकिन वो छोटे छोटे चेंजेस को भूल जाते हैं। अगर वो छोटे छोटे चेंजेस को भूल रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलाज सही दिशा में जा रहा था, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, और जैसे ही हमने हमारे डॉक्टर या फिजियो हमारे किसी के पास भी हम जब जाकर बोले कि इलाज तो हो नहीं रहा, कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा, तो उनको भी लगता है कि ठीक है यार, ये मतलब अभी जो हमने ट्रीटमेंट प्लान किया था वो ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपर नहीं होगा, तो इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। लेकिन वहीं पर अगर आपने छोटे छोटे चेंजेस को ऑब्जर्व किया, छोटे छोटे चेंजेस कैसे, जैसे जब कोई व्यक्ति करवट लेके उठने की कोशिश करता है, बैठने की कोशिश करता है, चलने का जो तरीका है, बाथरूम जाने का जो तरीका है, ब्रश करने का जो तरीका है, खाना खाने का तरीका है, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं तो इन पॉजिटिव चेंजेस को नोट करना है। वहीं पर अगर कुछ नेगेटिव चेंजेस दिखते हैं कि ये पहले कर पाते थे अभी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे करने में तकलीफ हो रही है, तो उनको कहीं ना कहीं नोट करना है, जिससे जब आपके पास नेक्स्ट टाइम फिजियो आपके पास आए या मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास आप है या डॉक्टर्स के पास आप जाएं तो उन चीजों को आप बता सकें। ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन कोई भी फिजियो, कोई भी डॉक्टर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके साथ आप एक छोटे समय के लिए रहते हैं। फिजियो सेशन के लिए आप हैं तो 1 घंटे के लिए आप हैं, थोड़े समय के लिए आप हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं 15 दिन में एक बार जा रहे हैं, महीने भर में एक बार जा रहे हैं। तो इन छोटी चेंजेस को मॉनिटर करना, इस प्रोग्रेस को समझना, ये सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
यहाँ पे ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम हॉस्पिटल से वापस आते हैं, घर पे वापस आते हैं, तो मरीज के लिए बहुत सारी जरूरतें रहती हैं। उनकी फिजिकल नीड्स, यानी डेफिनेटली अब वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गए, उनको चलने फिरने में कहीं ना कहीं असमर्थता हो रही है, उन्हें हर दिन के काम करने में, बेदिंग में, ड्रेसिंग में, खाना खाने में, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। इमोशनली वो डाउन हुए, कहीं ना कहीं उन्हें एक प्रोत्साहन की जरूरत है और आपके सब्र की जरूरत है, फैमिली मेंबर्स के सब्र की जरूरत है। वो जो सब्र है, उस सब्र का मतलब ये नहीं है कि कहीं हम ओवरडू, यहां पे मैं कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। ओवरडू वर्सेस अंडरडू, ओवर प्रोटेक्टिव वर्सेस केयरलेस, ये दो प्रिंसिपल हमेशा काम याद रखिएगा। कभी भी किसी भी मरीज को अगर आप जरूरत से ज्यादा मदद करके दे रहे हो तो रिकवरी में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इस तरह से बना है कि वो अपने हिसाब से काम करने के लिए ट्रेन होता है। आप अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट है और उसे हर दिन आप खाना खिला रहे हो, हर दिन आप सहारे से खड़ा कर रहे हो, हर दिन आप चला रहे हो, तो डेफिनेटली उसे इतनी ज्यादा मदद कर रहे हो कि कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी में अंतर आएगा। तो आप बोलोगे कि अब क्या करें, उनको इंडिपेंडेंट चलने के लिए बोल दें? नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। इंडिपेंडेंट चलने के लिए बोला तो गिर जाएंगे अगर उनकी समर्थ नहीं है। लेकिन जितना उनका सामर्थ्य है, उतने सामर्थ्य पे उनको उनका काम करने देना, ये सबसे सही चीज है। अगर आप कम मदद करोगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, गिरने का डर है, बहुत सारी चीजों का डर है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा मदद करोगे तो भी प्रॉब्लम है। ओवर प्रोटेक्टिव, मैंने अपने करियर में काफी सारे केसेस ऐसे देखे, खासकर बच्चे, अगर उनके पेरेंट्स में किसी को पैरालिसिस हुआ है तो बच्चे इतने प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि जैसे ही कोई पेरेंट है, मदर फादर कोई भी है, वो करवट लेने के बारे में सोचेंगे और करवट लेने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे होंगे तो बच्चे फटाक से आएंगे और करवट दिलवा देंगे, फटाक से आएंगे, उठा के बिठा देंगे। यानी कि उन्होंने पेशेंट को अपना एफर्ट लगाने के लिए समय ही नहीं दिया। तो ये हो गया ओवर प्रोटेक्टिव। करवट लेना तो सेफेस्ट काम है ना, वहां पे तो किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगेगी। थोड़ी देर तक प्रयास करने देते हैं, अगर नहीं ले पाएंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे। जहां पे एक व्यक्ति 30 सेकंड में करवट ले सकता है, 10 सेकंड में करवट ले सकता है, हो सकता है ये जो पेशेंट है इसको 5 मिनट लग जाए, लेकिन वो 5 मिनट का प्रयास तो किया, 5 मिनट की एक्टिविटी तो की। तो वो एक्टिविटी को जो सेफर एनवायरनमेंट में है, जो आपके फिजियो से आप बात कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है इसमें हमें कितना इंडिपेंडेंस इनको लेकर आना है, कितना इंडिपेंडेंस इनको सिखाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है पेशेंट के लिए। ओवरडू, अंडरडू। ओवरडू यानी कि बहुत ज्यादा मदद करना, अंडरडू यानी कोई मदद नहीं करना। ओवर प्रोटेक्टिव यानी कि हर बार अपना हाथ लगा के रखना, हर बार सहारा दे के रखना, हर एक चीज में बिल्कुल तत्पर खड़े रहना, तत्पर खड़े रहना। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा। अब जब ये पेशेंट घर पे आ गए हैं तो ये मेडिकली स्टेबल है, हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज किया है ना, तो हॉस्पिटल ने ये कहकर डिस्चार्ज किया है कि अब आप मेडिकली स्टेबल हो, अब आपकी जान को खतरा ज्यादा नहीं है, अब आपको फिजिकली रिकवर करना है। तो जब फिजिकली रिकवर करना है तो उस फिजिकल रिकवरी में अगर हम बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। अ, हर शब्द का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे मैंने लिखा बीइंग पेशेंट एंड एम्पैथेटिक और इमोशनल सपोर्ट के बारे में लिखा। हर शब्द का अपना एक मतलब होता है। जनरली देखने में आता है कि पेशेंट के पास कोई बैठा हुआ है, 4 रिलेटिव्स आ गए और वो अपनी बातों में अरे बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा वैसा, ये जो शब्द हम बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिकवरी में प्रॉब्लम करते हैं। आपकी तरफ से जो बोले गए शब्द हैं वो इनकरेजिंग होने चाहिए। पेशेंट को कहीं से, पेशेंट को हमेशा ये एहसास ज्यादा रहना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल से निकल कर आ गया हूं, मैंने जिंदगी की एक जंग लड़ ली है, अब मैं थोड़ा सा विजेता बन गया हूं। मैं अभी मौत के मुंह से, जो मुझे एक दिक्कत थी, जो मुझे एक प्रॉब्लम आई थी, उस प्रॉब्लम से मैं बाहर आ गया हूं, अब मुझे रिकवर करना है, अब मुझे वापस से ताकत चाहिए, अब मुझे वापस से रीट्रेनिंग चाहिए जिससे कि मैं अपने काम को वापस से दोबारा से कर सकूं। तो यहाँ पे बोले गए आपके जो शब्द हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जनरली जो इन जनरल जो वर्ड बोले जाते हैं वो उनको थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए। रिकवरी को हमेशा फैमिली मेंबर्स को मैं एक स्पेशल सजेशन यहाँ पे दूंगा कि रिकवरी को अपने फिजियो के साथ, अपने डॉक्टर के साथ रिकवरी की टाइमलाइन या रिकवरी को स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन मैं अगर पूछूं किसी से भी, अगर एक पैरालिटिक पेशेंट है जो कि बिस्तर पे है, उसके लिए रिकवरी का मायने क्या है, सबका आंसर एक ही आएगा, वो चलने लगेगा तो रिकवर हो जाएगा।
तो एंड गेम सबको यही चाहिए कि वो चलने लगे तो वो रिकवर हो गया, डेफिनेटली एंड गेम वही है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को, यानी बिस्तर से चलने तक, इस पूरी प्रोसेस को अगर मैं भागों में बांट दूं, भाग कैसे? क्या वो इंडिपेंडेंट बिना किसी सहारे के बैठ पाते हैं? क्या वो बिना किसी सहारे के खड़े हो पाते हैं? क्या वो बिना किसी सहारे के 4 कदम चल पाते हैं? अगर इन स्टेप्स में मैंने अपने ट्रीटमेंट को बांट दिया है तो उन्हें चलने, यानी जो आखिरी का मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उसे लेने में आसानी हो जाएगी। और जब हम इस तरह से ऑब्जेक्टिव को बांटते हैं तो अल्टीमेटली हमें क्या फायदा मिलता है? हम थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव को आगे की तरफ में बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एकमात्र फैमिली मेंबर, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा समय बिताएंगे। और उस दौरान अगर वो जब सबसे ज्यादा समय बिता रहे, उस दौरान उनके द्वारा की गई एक्टिविटीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो आपके फिजियो या डॉक्टर के द्वारा बताई गई चीजों को कहीं पे नोट करना, लर्न करना और उनकी प्रैक्टिस करवाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पाथवेज को जंप करना, जंपिंग द पाथवेज का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करिए आपके फिजियो ने ट्रेन किया है कि आपके पेशेंट के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं कि बिना किसी सहारे, यानी कि इनकी कमर के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाए और ये बिना किसी सहारे के बैठने लगे। लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा ये है कि इन्हें चलाओ, तो हमने 3-4 रिलेटिव्स को इकट्ठा किया और खड़े होकर चलाना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली हमने एक पाथ, यानी हमारा जो पाथ हमने डिसाइड किया था, पहला पाथ क्या था? इंडिपेंडेंट बिठाने का। उसको कहीं ना कहीं हमने जंप किया और आगे की तरफ बढ़ गए चलाने के लिए, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब भी कभी हमारे शरीर के ऊपर कोई भी एक्टिविटी ज्यादा मात्रा में, पैसिव मात्रा में होती है, यानी कि पूरा सहारा देकर होती है, तो उसकी लर्निंग या उसकी कैपेबिलिटीज उतनी अच्छे से नहीं आ पाती। वहीं पर अगर ट्रंक कंट्रोल, अगर पहला स्टेप हमने अच्छे से पार किया है, और ना केवल पहला स्टेप पार किया है बल्कि उस पहले स्टेप को सेलिब्रेट भी किया है। सेलिब्रेट कैसे? अगर पेशेंट आज की डेट में पूरी तरह से बिस्तर पे है और वो बैठ नहीं पाता था, बिना सहारे के बैठ नहीं पाता था, हमने पहला स्टेप, आपके फिजियो ने, आपके डॉक्टर ने, आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स ने एक पहला स्टेप बनाया कि इनको हम इंडिपेंडेंट बिठाने का सिखाएंगे। सबसे पहला स्टेप हम सिखाएंगे कि इंडिपेंडेंट बैठने लगे। अगर वो पहला स्टेप हमने पा लिया और उस पहले स्टेप को पाने के बाद में उसको सेलिब्रेट कर लिया, थोड़ी सी मिठाई मंगाकर, घर में हलवा बनवाकर या कुछ भी तरीके से, दैट विल गिव अनदर बूस्ट, अनदर, पेशेंट की साइकोलॉजी के ऊपर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स को हम सेलिब्रेट नहीं करते तो पेशेंट के दिमाग में हमेशा लगा रहेगा कि जब मैं चलने लगूंगा तब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। हमारे डिपार्टमेंट में कई ऐसे केसेस आते हैं जो लगभग चलते हैं, सब कुछ अपना काम करते हैं, लेकिन वो अभी भी इलाज ले रहे हैं। क्यों इलाज ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड करने की कोशिश की जिससे कि वापस वो अपने काम पर जा सके। छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये काम है फैमिली मेंबर्स का, जिससे कि वो ऑब्जर्व करें और वो छोटे स्टेप्स को आसानी से बनाकर दे सके। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है, जो कुछ मिथ्स रहते हैं घर वालों के पास में, वो मिथ ये रहते हैं कि मैं तो अपनी तरफ से बेहतरीन इलाज करवा रहा हूँ, मैं तो अपनी तरफ से, मैं तो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को दिखा रहा हूँ। मैंने फिजियो के लिए भी बोला हुआ, फिजियो दिन में 3 बार मेरे सेशंस होते हैं, बढ़िया, अब मेरी ड्यूटी खत्म। नो, दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, अनटिल अनलेस, क्योंकि पेशेंट सबसे ज्यादा, आपका फैमिली मेंबर, पेशेंट सबसे ज्यादा किससे कनेक्टेड है? आपसे कनेक्टेड है। अगर आपके द्वारा कुछ बातें बोली जाएंगी, आपके द्वारा जो एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, डेफिनेटली उनका असर किसी भी दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल या किसी भी दूसरी असिस्टेंट से कहीं ज्यादा डिफरेंटली पड़ेगा। इसलिए मेरा अभी सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो टेक होम मैसेज है वो यही है कि हमें कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ में बात करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, और एक पिलर के रूप में, यानी एक असिस्टेंस टीम के रूप में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि हम उस ट्रीटमेंट टीम का हिस्सा बन सके, ना कि एक्सपेक्टेटर का या ना कि ऑडियंस का। ट्रीटमेंट टीम का अगर हिस्सा बनेंगे तो डेफिनेटली पेशेंट सबसे ज्यादा शेयरिंग अगर किसी से करेगा तो वो आपके साथ करेगा। सिमिलरली एक कॉमन सा एरर देखने में मिलता है, खासकर स्ट्रोक के पेशेंट्स में, जब वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं विजिट करने के लिए, लगभग दवाइयां रिपीट होती हैं, माना ये हमें लगता है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट को क्या लगता है कि इनको ये जो दवाइयां हैं उसको कब टेपर करना है, यानी कब कम करना है, कब ज्यादा करना है। तो जो ये 15-20 दिन या सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
न्यूरोलॉजिस्ट का जो विजिट रहता है वो विजिट कहीं ना कहीं पे हम स्किप इसलिए कर लेते हैं कि पिछली बार भी वही दवाइयां दी थी, इस बार भी वही दवाइयां दी हैं, तो अगली बार क्यों जाना, दवाइयां वही चलनी है तो हम लगातार वही दवाइयां खाते रहते हैं। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपके न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस यही है कि आपके द्वारा दी गई दवाइयां, उनके द्वारा दी गई दवाइयों को कब किस तरह से चेंज करना है, दैट इज देयर। आता है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सेम इशू आता है, आप लोग म्यूट होंगे तो कुछ जगहों पे म्यूट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सेम इशू आता है फिजियोथेरेपी के साथ में भी। जैसे ही शुरुआत के समय में एक्सरसाइजेस को देखा, समझ में आया कि एक्सरसाइजेस तो बहुत आसान है, इन एक्सरसाइजेस को तो हम आसानी से घर पे कर लेंगे। इन एक्सरसाइजेस में क्या अल्टरेशन होना है, आवाज नहीं आ रही सर। क्या चेंजेस होना है। हेलो, एम आई ऑडिबल? You are audible. यस सर। राइट, ओके, सॉरी, वो उनके यहाँ पे शायद सिग्नल का इशू होगा। सो किस समय पे हमें क्या एक्सरसाइजेस करनी है, कहाँ पे एक्टिविटी लेवल हमें बढ़ाना है, कहाँ पे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो ऑटोमेटिकली नहीं चलने वाला, हाथ पैर हिलाने से नहीं चलने वाला, उसको तो हमें डिफरेंट टाइप का सिग्नल देना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कि एक बच्चा सबसे पहले चलना सीखता है, अलग अलग प्रकार के एनवायरमेंटल सेंसेशंस को लेकर, उन सेंसेशंस के साथ में वो उनका ब्रेन इंटीग्रेट करता है और फिर वो चलना शुरू करता है। वैसे ही यहाँ पे हमें रीलर्न करवाना है मूवमेंट्स को। उस रीलर्निंग के लिए वो सिचुएशंस, वो टास्क बेस्ड एक्टिविटीज हमें करवाना जरूरी है। सो दिस इज ऑल टुगेदर अबाउट ये। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इस चीज को एक अगली स्लाइड में और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेना चाहूंगा। कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है होम एडजस्टमेंट, आपके घर में जो हैजार्ड्स यानी जिनसे टकरा के गिरने की संभावनाएं रहती हैं उनको हटा देना। कहीं ना कहीं सपोर्ट बार, यानी कि अगर बाथरूम में उठ के बैठने में प्रॉब्लम आ रही है तो बाथरूम में कुछ बार्स वगैरह लगाना जिससे कि आसान हो सके। एक रूटीन एस्टेब्लिश करना, एक मोनोटोनी नहीं बनाना कि दिन भर है, चूंकि वो मरीज हैं तो उनके साथ में सिमिलर टाइप का व्यवहार हर दिन हो रहा है। एक रूटीन एस्टेब्लिश करना है जिसमें आउटिंग से लेकर, दूसरे लोगों से मिलने से लेकर, आगे की प्लानिंग से लेकर हर एक चीज में मरीज को अगर पार्टिसिपेट करवाते हैं तो ये काफी हद तक हेल्पफुल रहता है। एक डेली शेड्यूल बनाना और थेरेपीज और एक्सरसाइजेस को हर हिस्से में, हर जगह पे लेकर आना। कॉमन सी चीजें हैं, जैसे कुछ हाइजीन के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। हाइजीन यहाँ पे माउथ, यानी कि नॉर्मल जो हम ब्रश करते हैं, हमारे मुंह की जो हाइजीन है उसमें ब्रश से लेकर लिस्ट्रीन से लेकर ये इंपॉर्टेंट रहता है। हाइजीन क्यों इंपॉर्टेंट है पेशेंट का? क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन पैदा हुआ तो वो पूरी रिकवरी की प्रोसेस को कहीं ना कहीं पे वापस कर देगा। फीवर आएगा, दूसरे प्रकार के प्रॉब्लम आएंगे तो वो पूरी रिकवरी प्रोसेस को कहीं ना कहीं पे अफेक्ट करेगा। आपके मुंह से लेकर, आपके बालों से लेकर, आपके नेल्स, नाखून तक, इन सब का हाइजीन को मेंटेन करके रखने का काम, पेशेंट्स की हाइजीन को मेंटेन करके रखने का काम फैमिली मेंबर्स का शुरुआत के समय में, लेकिन ग्रेजुअली पेशेंट को अवेयर करना जिससे कि वो स्वयं अपने हाइजीन को लेकर सजग हो जाएं, स्वयं अपने हाइजीन को लेकर चीजें लेकर आए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेशेंट लंबे समय तक बिस्तर पे है और घर आने के बाद में भी बिस्तर पे है तो प्रेशर सोर बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो कंटिन्यूअस उनको करवट दिलवाने का काम अपने फिजियो से डेफिनेटली लर्न कीजिए, अपने क्या नाम है मेडिकल प्रोफेशनल से लर्न कीजिए, जिससे कि प्रेशर सोर को बचाया जा सके। पैरों में जो खून का थक्का जमता है, डीवीटी जैसे बोलते हैं, उसको बचाने का काम डेफिनेटली लर्न कीजिए फिजियो के साथ में। जैसे आपकी पिंडलियों को दबाने से लेकर पैरों के मूवमेंट तक, जिससे कि किसी भी प्रकार का खून का संचार कम ना हो और डीवीटी प्रिवेंट रहे। आपका यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक कॉमन सा कॉज होता है, क्योंकि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं है, अगर कैथेटर लगा हुआ है तो कैथेटर लगने के बाद में यूरिन यूटीआई होना है और उसकी वजह से जो फीवर वगैरह आती है, जो दूसरी प्रॉब्लम होती है, उनमें प्रॉब्लम आती है। ना केवल इनके अलावा, चूंकि पेशेंट बिस्तर पर लंबे समय तक है तो उसके लंग्स का, यानी कि फेफड़ों का और हृदय की जो एंड्योरेंस एक्टिविटी यानी उनकी शक्ति है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्राणायाम, इस तरह की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, अपने फिजियो से लर्न करने की कोशिश कीजिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे की जा सकती हैं। अगर पेशेंट हमारा चल नहीं पा रहा है और हाथों में कुछ मूवमेंट है, मैं तो कहता हूँ एक हाथ एक पैर में भी मूवमेंट नहीं है लेकिन एक हाथ एक पैर में तो है, तो एक हाथ और एक पैर में अगर है तो वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटी जिनमें ताकत है, जिन हाथ और पैर में ताकत है उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे हृदय गति थोड़ी सी ज्यादा रहे, जिससे कि कार्डियक एंड्योरेंस हमारे, मतलब हृदय को ज्यादा मात्रा में हम
पंप करवा सकें, ज्यादा एक्टिविटी करवा सकें, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सकता है। सिमिलरली अगर काफी लंबे समय तक पेशेंट खड़ा नहीं हुआ है या सपोज करिए उनके पैरों के ऊपर वजन नहीं पड़ा है, तो हड्डियों में कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी अपने फिजियो से बात करके कैसे स्टैंडिंग फ्रेम्स हैं, अलग अलग प्रकार के सोल्यूशंस हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट हैं जिन 4 पॉइंट में आप अपने पेशेंट को बहुत अच्छे से मदद कर सकते हो। पेशेंट की हाइजीन यानी पेशेंट की साफ सफाई, शुरुआत में खुद, धीमे धीमे पेशेंट को स्वयं ट्रेन करके। दूसरे नंबर पे पेशेंट के जो कॉम्प्लिकेशन है, बिस्तर पे पड़े रहने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं उनको दूर करना। तीसरे नंबर पे फंक्शनल एक्टिविटीज। कई बार देखने में आता है पेशेंट का एक हाथ, एक दोनों हाथ थोड़े चलने तो लगे लेकिन कमजोरी है। अगर हाथ चलने लगे हैं तो अगर हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि अपने बेड की बेडशीट खुद फोल्ड करके रखो, ये सुनने में थोड़ा सा रूड लगेगा, वो तो पेशेंट है, पेशेंट को कैसे बोल रहे हो घर का काम करने के लिए? नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है। अगर पेशेंट वो काम थोड़ा रुक रुक के धीमे से कर सकता है तो वो काम करवाना है। चाहे वो आटा मारने का काम हो, चाहे बेडशीट फोल्ड करने का काम हो, चाहे ग्लास धोने का काम हो, कुछ भी काम जो पेशेंट थोड़ा रुक रुक के सेफ्टी लिमिट के अंदर कर सकता है, ऐसा करवाने से आप अल्टीमेटली वो एक्टिविटी को ट्रेन करते हैं और वो एक्टिविटी आसानी से पेशेंट लर्न कर पाता है और रिकवरी हमारी फास्टर होती है। किचन में डेफिनेटली, किचन से लेकर जो भी एक्टिविटीज है, गार्डनिंग है, पेट एक्टिविटीज है, जो भी एक्टिविटी अगर पेशेंट करता है, मैंने फिर से बोला, ओवर प्रोटेक्टिव और केयरलेस। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, कुछ भी काम नहीं करने दे रहे हैं, जो वो कर सकते हैं वो भी नहीं करने दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं रिकवरी को आप स्लो कर रहे हैं। जो काम वो कर सकते हैं उनको हमें बढ़ाने की जरूरत है। साइकोलॉजिकली वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैक टू वर्क और बैक टू सोशल। बैक टू वर्क का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पेशेंट घर में है और शुरुआत के समय में वो जो भी काम करते थे, आज कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद जो काम वो पहले करते थे उसका 10% वो अब करने लगे। अगर वो 10% करने लगे हैं तो वो 10% काम वापस से करवाने चाहिए। इस चीज का वेट नहीं करना चाहिए कि जब पूरा रिकवर कर जाएंगे तभी ये काम करेंगे। अगर आप इस चीज का वेट करोगे कि पूरा रिकवर होने के बाद में ही काम करेंगे तो अल्टीमेटली एक लंबी साइकिल है, और इस लंबी साइकिल में कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर आना शुरू हो जाते हैं। मोनोटोनी को दूर करना है, ये सारे कॉमन से वर्क हैं जिन्हें जिन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। सो नेक्स्ट पॉइंट, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब कभी भी पेशेंट से बात करनी हो, स्लोली, क्लियरली, छोटे छोटे सेंटेंस के साथ में बात करना जिससे कि उन्हें समझ में आए। इशारों का यूज कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट को बोलने में तकलीफ हो गई है या जैसे एफेजिया वगैरह रहता है जिनमें बोल नहीं पाते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली इशारों का, विजुअल एड्स का, जिससे कि और पेशेंट को समय दें। कॉमनली मेरे को देखने में मिला है कई बार जब हम पेशेंट से पूछते हैं, क्यों बताओ खाना खाओगे क्या, क्यों बताओ खाना खाओगे क्या, खाना खाओगे क्या, खाना खाओगे, हमने 4 बार बोल दिया, इतनी देर में उनका ब्रेन रिस्पॉन्ड करता, समझता, आंसर दे पाता। बार बार अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो वहां पे वो फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। पेशेंट को थोड़ा सा समय देना इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाना, यानी कि स्वयं से काम करने की प्रवृत्ति को जितना जल्दी बढ़ाएंगे, जितना हम प्रमोट करेंगे, उतना अच्छे से हम रिकवर कर पाएंगे। और मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जितने भी पॉइंट मैंने अभी तक बोले हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आपके साथ कोई डॉक्टर रहकर ये सारे काम करवा सके, या कोई फिजियो आपके साथ रहकर ये सारे काम करवा सके? नॉट पॉसिबल। ये सारे के सारे काम फैमिली मेंबर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय वहां पर रहते। अब प्रश्न ये आता है कैसे करना है, तो कैसे करना है उसके लिए डेफिनेटली आप अपने फिजियो, अपने डॉक्टर, इन लोगों के साथ बात करके इस चीज को लर्न कर सकते हैं कि भैया मैं आने वाले 23 घंटे तक मैं पेशेंट के साथ में हूं, अब इन 23 घंटों में मुझे क्या करना है। मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरी लाइफ के 12 घंटे आप निकाल दो, मैं पेशेंट को 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे दे सकता हूँ। इन 6 घंटों में मैं क्या ऐसा काम करूं जिससे कि पेशेंट की रिकवरी में मदद मिले, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी में हेल्प मिले। तो ये चीजें, ये प्रश्न हमेशा अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स या अपने फिजियो से पूछना जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि कोई भी प्रकार का अडेप्टिव टूल इंडिपेंडेंस के लिए, जैसे क्या नाम है, वॉकर हुआ या कोई भी चीज हुई, ये अपनी तरफ से नहीं देना है।
ये हमेशा अपने फिजियो से बात करके ही देना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी भी पेशेंट को, देखो फिर से मैं बोलूंगा, जब पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस से जब हम रिकवर कर रहे होते हैं, तो रिकवरी के टाइम पे हमारा ब्रेन वो सारे मूवमेंट लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चा पहली बार लर्न करता है जब वो पहली बार चलना सीखता है, यहाँ पे वो रीलर्न कर रहा होता है। उस रीलर्निंग वाली प्रोसेस में अगर आपने कुछ स्टिक पकड़ा दी या वॉकर पकड़ा दिया, तो उसका ब्रेन कैसे लर्न करेगा? सिर्फ स्टिक के साथ चलने के लिए लर्न करेगा। तो अगर उस पेशेंट में पोटेंशियल था कि बिना स्टिक के वो चल सकता था, लेकिन आपने ब्रेन की ट्रेनिंग कैसी कर दी? स्टिक के साथ चलने की कर दी। ये प्रॉब्लम है। इस चीज के लिए बहुत ध्यान देकर करना चाहिए कि कब देना है कब नहीं। तो उसमें अपने फिजियो की सजेशन लेके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को बनाकर रखें, छोटे छोटे अचीवमेंट को शेयर कर, क्या नाम है, सेलिब्रेट करें, जिससे कि पेशेंट का क्या नाम है, मनोबल बढ़े। और कंटिन्यूअस एफर्ट्स इसमें हमेशा जरूरी है, जिससे कि ये चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पेशेंट का मूड स्विंग, फ्रस्ट्रेशन, ये कॉमन सी बात है, क्योंकि वो उस परेशानी को झेल रहा है। कई बार हम परेशान हो जाते हैं और हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, या हम अपनी तरफ से एक रिटेलिएट करना शुरू कर देते हैं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वहां पे समझने की जरूरत है कि वो एक जगह पे उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, तो उसको हमें कैसे टैकल करना है। कुछ ना कुछ इमोशनल चेंजेस आते हैं। इस एंगर और फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए डेफिनेटली अपने डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या इन लोगों से बात करनी चाहिए। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिजियो अपनी तरफ से एक्सरसाइजेस सिखा रहे हैं, फिजिकल क्या नाम है, इंडिपेंडेंस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेटाबॉलिकली शरीर के अंदर अच्छे चेंजेस रहे उसके लिए डॉक्टर्स दवाइयां देने की कोशिश कर रहे हैं, डाइटिशियन भी अगर आप मदद ले रहे हैं तो ये कर। इन अ सिमिलर वे, अगर किसी व्यक्ति का मूड स्विंग हो रहा है, तो उस समय पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। ये कहीं ना कहीं पे मदद करता है। आपके दवाइयों का मैनेजमेंट, दवाइयों का ट्रैक प्रॉपरली मैनेज करके रखना, प्रिस्क्रिप्शन को शेड्यूल, मतलब दवाइयों की प्रॉपर शेड्यूल को बनाए रखना, आपके डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाइयों को प्रॉपरली बनाए रखना, न्यूट्रिशन यानी खाने पीने के ऊपर ध्यान देना, और एक बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, along with other activities. So these are the क्या नाम है, important thing. Next is social connection. फिर से ये बीच बीच में जो आवाजें आने लगती है ना, आई एम लिटिल डिस्टर्ब इन दैट, बट एनीवे चलिए। मेंटेनिंग सोशल कनेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी कोई व्यक्ति नॉर्मल था, आपके घर का पेशेंट, अगर जब वो नॉर्मल थे, तो डेफिनेटली उनके फ्रेंड्स थे, उनके क्या नाम है, सोशल कनेक्शंस थे। उन फ्रेंड्स और सोशल कनेक्शन से एक ना एक तरह का कहीं ना कहीं पे अभी वो हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गए। तो एक फ्रस्ट्रेशन आना, एक प्रकार का एंजाइटी आना लाजमी है। लेकिन अगर उस सोशल कनेक्शन को हम किसी तरह से मेंटेन कर पाए, बीइंग अ फैमिली मेंबर, तो डेफिनेटली रिकवरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं से हेल्प होगी। जनरली हम अवॉइड करते हैं किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी में पेशेंट को ले जाना। मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको लगता है जिस जगह पे आप ले जाना चाह रहे हो, उस जगह पे आपको डेफिनेटली उनको ले जाना चाहिए, जिससे कि एक प्रकार से एक्टिविटी, एक प्रकार से उनका इंटरेक्शन लोगों से बढ़ेगा। सपोर्ट ग्रुप्स तो इंडिया में नहीं है इतनी ज्यादा, बट इट शुड बी देयर, इट शुड बी देयर। कब मेडिकल एडवाइस लेनी है? मैम ये म्यूट करेंगे, कौन है ये? ओके। सो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, यानी कि कॉम्प्लिकेशन अपने डॉक्टर से और अपने क्या नाम है, फिजियो से बात करते हुए कि कब हमें मेडिकल एडवाइस लेनी, कॉम्प्लिकेशन के साइन क्या है, कब हमें ध्यान देना है, कब हमें हमारे पेशेंट के लिए सजग रहना है, रेगुलर फॉलोअप, और इन सब चीजों की तरफ में भी ध्यान देने की जरूरत रहती है ये फैमिली में। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लास्ट में यहाँ पे लेना चाहूंगा। मैम प्लीज ये इनको थोड़ा, ये जो भी है इनको म्यूट कर पाएंगे क्या? Sir, interrupting, sir. Sir, sorry for Yeah, please carry on, sir. So एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। I was in Burhanpur at that time, and there was a case. Still, there are many cases right now. We are taking care of more than 800 cases with the help of team Hum Saath Hain, and they are doing really wonderful job. That team is really doing wonderful job. And right now, many of the patients from Hum Saath Hain have joined today's webinar also, and they are treating this Hum Saath Hain treating basically tackling with the family members only. So I still remember a case when I was in Burhanpur.
Burhanpur, and it was a severe stroke case, and that case was something like where जहाँ पे मतलब physician was saying कि okay fine आप घर ले जाइए सेवा कीजिए, it's nothing over there, and the family member approached and they asked के क्या नाम है अभी क्या करना है इनमें, तो उनको कुछ बेसिक एक्टिविटीज बताकर वहां से डिस्चार्ज किया था, एंड चूंकि बिल्कुल कॉमेटोज स्टेज में पेशेंट था तो कॉमेटोज स्टेज में बहुत ज्यादा सिर्फ मेंटेनेंस के अलावा कोई और दूसरी एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। तो फैमिली मेंबर में उनकी एक बेटी थी जो टीचिंग का जॉब करते थे, उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और जो एक्टिविटी बताई थी, सिंपल एक्टिविटी, सिंपल मूवमेंट्स, सिंपल केयर, कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए ये एक्टिविटी, व्हीलचेयर पे अगर बिठाना है तो ऐसे कर लिया, ये सारी। कॉमेटोस पेशेंट थे, मैंने कहा जरा सा भी इनको सेंस अगर आता है, जरा सा भी कॉमेटोस से बाहर आते हैं तो बताइएगा। वो अपने मेडिकल एडवाइजर्स अपनी उनकी रेगुलर चल रही थी घर पे। ऑल ऑफ द सडन आई गॉट अ कॉल आफ्टर 3 months. It was just because of the dedicated support from her daughter, that she after 6 months, after 3 months, she got some consciousness, and then after that a regressive aggressive physical therapy sessions were on and she was able to walk. So the case which was completely in denial, completely in condition जहां पे बोला गया था कि नहीं अभी बिल्कुल गड़बड़ होगा, तो यहाँ पे ये चीजें होती है। मैं ये नहीं कहूंगा हर केस के साथ में ही होता, क्योंकि मेरा पहला सेंटेंस ये था कि हर केस अपने आप में डिफरेंट होता है, बट ये वाला केस स्पेसिफिकली क्यों कोट करना चाहा, क्योंकि जब फैमिली मेंबर ने जितना बताया गया उतना किया, तो वहां पे अगर पॉसिबिलिटी थी रिकवर होने की, रिजल्ट आने की, तो वो रिकवर और रिजल्ट आया। So that was a clear-cut example of that particular stroke survivor. Unfortunately, वो पूरी तरह से नहीं चल पाए थे because of osteoarthritis, जो घुटनों में दर्द था उसकी वजह से वो completely independent नहीं हो पाए थे. But she was very well in other activities and all these things. So this is the power of family member, where if you are taking an active participation, अगर कोई फैमिली मेंबर एक्टिव पार्टिसिपेशन ले रहा है रिकवरी प्रोसेस में, आई एम वेरी श्योर इट विल बी इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर with the help of medical professionals. So मैं यहाँ पे definitely बोलना चाहूँगा doctors, physios, psychologists, speech therapists, all together makes a team to get a better recovery of a stroke patient. But one more important member is there, which is family member, that need to be included. And if they are included very well in the rehabilitation team, I'm very sure the recovery is miraculous. So this is altogether about today's gist of, there are many things to say, but as a time constraint is there, I'm stopping over here. Welcome for your question and answer. Megha ma'am, please, over to you, ma'am. Thank you so much, Mr. Anand. That was very informative, and I hope our audience has also gained many new information, and they would be able to support their family members. They would be able to identify the stroke patients and would be able to support the family members. Since I haven't got any questions in the chat box, but I want to ask some question to you, Mr. Anand. Yes, ma'am. Is it possible to get complete recovery in stroke patients? Ma'am, once again, the answer is same. Each and every stroke case is different. Suppose a case is there which is mild or transient ischemic attack. You can see the case is entirely, matlab, they are you cannot judge they had stroke or something like. In transient ischemic attack, the recovery is within 24 hours. Similarly, I would like to quote one of my case. He was in a state police services, and got a stroke, and he was about to get IPS. He was about to get awarded with IPS. But being a police person, being an IPS, physical recovery is quite important. But he had a mild stroke. So he recovered like anything, and he's right now IPS. He's right now DIG over in police department. So I would like to not like to mention the name, but yes. So this is possible. This is very much possible. But once again, here the principle is of motor relearning. So whenever we start relearning process, in that relearning process, at what time, what condition, if it is mild, somehow moderate, then definitely we can make them learn in a very best manner with a guided task oriented exercises and activities, ma'am. Thank you so much, Mr. Anand. If anyone of the audience member have any questions, please put it in the chat box so that I can ask the same question to Mr. Anand. While everybody is asking some question, I want to ask further one question to you, Mr. Anand. So, is the stroke preventable? And
if yes or not, but and how we can really prevent the complications of the stroke? Stroke preventable, yes, guidelines are saying in that way. If these factors which is responsible for stroke, if you are managing your obesity, diabetes, smoking, and all these things, definitely it can be prevented. But must say, this condition is something like that which is prevalent, as per the data, as per the recent data. Every 1 lakh of population, we are having 150 stroke every year, every year. So it's quite a high number, because of the lifestyle and because of these things. And apart from that, another question is that related to the complication. Yes, I would like to mention specifically over here कि व्यक्ति स्ट्रोक या पैरालिसिस का जो उसे एपिसोड हुआ, जिस एपिसोड से उसकी जान बच गई, उससे वो परेशान नहीं होता है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन से ज्यादा परेशान होता है। अगर वो स्ट्रोक का पेशेंट अनअटेंडेड रहा, यानी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, तो जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि कॉन्ट्रेक्चर्स डेवलप, बिकॉज ऑफ स्पास्टिसिटी कॉन्ट्रेक्चर डेवलप हो जाना, उसकी एक ऑब्लिगेटरी क्या नाम है एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर लेना, साथ में एक अडेप्टिव एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर लेना जिसमें वो पैर लहरा के चल रहा है, इन सबको जब वो अडॉप्ट कर लेता है, और इसकी वजह से जो कॉन्ट्रेक्चर, टाइटनेस, ये जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे उनको गाइडेड एक्टिविटी, गाइडेड मूवमेंट, गाइडेड फिजियोथेरेपी इज ऑलवेज एसेंशियल टू प्रिवेंट सच कॉम्प्लिकेशन which is arising because of inactivity or because of person is on bed or something like that. Yeah, Prasenji sir is. Thank you. Yeah, sorry, Mr. sorry. Anand. I'm sorry, Yes. ma'am. Yeah. Yeah. So I think so. Some questions. Prasenjit Das sir has raised his hand. Yeah. Please, sir, you could unmute and ask the question to Mr. Anand. Actually, we are participants here as a group. We can And see that. We can see that, and we really thanks for your. We are from Bajbo Healing Touch Foundation. We are providing 24/7 geriatric healthcare support in Kolkata. Great. And also our skill training units are there, Bajbo School of Human Skill Development. So the participants of ANM and participants of physiotherapy assistant courses, they are also participating here. So I am Dr. Dhiresh Chaudhary from Kolkata. I am practicing geriatrics. And first of all, thanks to Mr. Anand Singh for nice deliberation, very meticulous deliberation, and in a simple words. You have mentioned lots of things that, but as a geriatric practitioner, I am dealing with lots of stroke patients. And initially, one thing is very important for family members to know what are the basic first symptoms of stroke. If so, there it's shortly termed as FAST. That is facial expression changes in facial expression. The patients are not able to raise their arms. Thirdly, speech disability, slurring of speech. These very three primary symptoms are there. And if these symptoms are there, we should not waste time, and timely we should go to the hospital that that our speaker already mentioned. And another very important thing is majority of stroke patients are basically they are bedridden, and already sir mentioned that. And bedridden patient, to deal with the bedridden patient, some special points from the feeding to maintenance of the genitourinary pathway, proper care of catheter, proper cleaning of both the urethral and the anal area, even the skin care. And sir mentioned that Sorry, I am for prevention interrupting of in the between. pressure sore, that is also very important. My one participant would like to ask one thing, sir. So I call Mr.
Could you please write down your question on the chat? We would ask that question. Thank you. Meanwhile, Mr. Anand, there is a question on the chat box. What Yes, are the precautions? Hello. What are the precautions needed for a stroke patient if he or she have any saliva or like fluids excretion from mouth? that need to be, the position need to be very well maintained, because the chances of aspiration is very high, very high. So the salivation, if it is in a higher manner, then this long standing this position, the position of head, and it should not be in such a position where there is a chances of aspiration. So to avoid aspiration is the major task. I would suggest to take a proper training from your consultant professional, that how much saliva. Hello? Yeah, we are just going to listen to you, just going to answer one question, है ना? So these are the things that need to be taken care to prevent aspiration as much as possible. Read to my. Yeah, please ask, Prasenjit sir, please ask. Sir, am I audible, sir? You are audible. Please ask your question. Sir, as a healthcare provider, sir, if the patient is really critical, sir, how do you know that the patient is really critical in positions, and as a healthcare provider, we should have to like look after the patients, and how can we diagnose that the patient is going in serious in condition? सारे काम खुद नहीं करना है जैसी रेड फ्लैग्स, अगर रेड फ्लैग्स निकल आए, समझ में आए कि यहाँ पे आप अपने आपकी नॉलेज और आपके सामर्थ्य यानी आपके पोटेंशियल के ऊपर कोई चीज जा रही है, तो इमीडिएटली रेफर करना है, क्योंकि पेशेंट सबसे ज्यादा, पेशेंट की लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हमें हमारा पोटेंशियल पता होता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज अ वेरी वास्ट टर्म। If you are talking about physio, if you are talking about nursing staff, if you are talking about a doctor, if you are talking about anything, so every person is having their own limitation and scope. So if any situation, for example, if I am a physio and if I am treating a case somewhere, and if I found some red flags that the situation is right now out of my scope, then I will immediately refer to that particular case. And regarding this diagnosis and all these things, you need to be little more observant and all these things. The vitals, the way the respiration is there, and all these things need to be little observant. It's really a vast topic. Okay, sir. Sir, my question is that if the patient is suffering comorbidity and he is also getting the attack, so what should we do first? We are taking care of the attack first, or refer the case. पागल है ये देख Refer the case. लाइव चल रही है। Thank you. Next, we will take only the last question from Mr. Nitin Chaudhary. Please. Nitin sir, please. Hi, good evening, everyone, and thank you so much, Anil sir, for joining today. My question is, like my neighbor suggested for some puja and asked for some visit to the renowned place. So, sir, should I go there? Right. It is really a wonderful question. I really missed in my presentation. It is a must to ask question. Now the question is, there are two answers over there. One is, ऐसा होता है क्या, हम माने या नहीं माने, ऐसा फ्लूक है क्या? अगर ये वाली साइंटिफिक थॉट प्रोसेस से जाएंगे तो डेफिनेटली हम पसंद नहीं करेंगे कि नहीं यार ये सब चीजें नहीं करनी है, इन सब चीजों पे नहीं जाना। हमें मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हम मेडिकल प्रोफेशनल की तरह हम हमारा जो साइंटिफिक वे है उस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। एक आंसर तो ये बनता है। लेकिन मेरे पास एक दूसरा आंसर है। दूसरा आंसर ये है कि कभी भी किसी के भी बिलीफ सिस्टम को चैलेंज मत करो। अगर आपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया है तो वो क्योंकि उसका जो साइकोलॉजी है या उसकी जो खुद की हीलिंग प्रोसेस है, वो हीलिंग प्रोसेस उस बिलीफ सिस्टम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है। तो अगर वो वहां जा रहा है, जहां कहीं भी मंदिर बोला है या कोई पूजा बोली है या कोई जगह बोली है या कोई मजार बोली है, कोई भी जगह बोली है, उस जगह पे जा रहा है तो वो एक बिलीफ सिस्टम के साथ जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ जा रहा है। तो वहां पे जाके अगर उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, नुकसान यानी कि पुड़िया वाली दवाई, स्टेरॉइड वाली कोई चीज या इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, तो लेट देम गो, because once they will go, they will come back, they are having different type of energy within themselves and that will help in healing. तो being a medical professional हम अपना काम करेंगे और उनका belief system का काम उनको करने देते हैं।
तो यहाँ पे मेरी तरफ से ये आंसर रहेगा, लेकिन साइंटिफिक आंसर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो यही रहेगा कि साइंटिफिक वे में जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. होप आई एम वेरी क्लियर इन दैट क्वेश्चन, एंड इट्स रियली थैंकफुल फॉर दिस क्वेश्चन. Thank you so much, Mr. Anand. I just request you to stop share your screen so Sure. that we could start asking our poll questions Yes, to ma'am. our August audience. Yes, ma'am. Just give us 1 second. We are just asking. So poll questions are there. There is a timer. Please start answering the audience. All the above. स्क्रॉल कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं, स्क्रॉल करेंगे तो और क्वेश्चंस आएंगे. Request everybody to answer the poll questions. There are 5 questions. Right now, only 11 participants has participated. You never know, you may get some gift out of that. Who would be answering? Participate in exercise. Gear up, audience. Be fast. So there are 5 questions. To participate in exercise and recovery process. No, it's not possible. Nobody please unmute and don't reveal the answers to everyone. Last 1 minute to answer.
So countdown begin to end the poll. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And we are ending the poll. So, Mr. Anand, please clarify if our audience has given the right answer. Most of them is great. Uh, just a minute. I'm not able to see the questions right now. So it's important component of stroke recovery. Most of Important them have timely- answered all of the them above. is a perfect answer. All of the work. Definitely timely medicine, guided exercises, practice of functional independence is more prominently, and all of the above is the right answer for that. Exercises are simple, can be done at home. ये कॉमन मिथ है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप गाइडेंस अगर लेके करेंगे तो डेफिनेटली आप करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर पाएंगे जिससे कि रिकवरी मिल पाए. इतना आसान नहीं होता हमारे ब्रेन को ट्रेन कर पाना, उसके लिए डेफिनेटली एक्टिविटी गाइडेड इंपॉर्टेंट है. फैमिली मेंबर कैन लर्न एक्सरसाइजेस फॉर वंस एंड देन विल कंटिन्यू. नो, इट इज नॉट राइट. एवरी टाइम जैसे कि आप मेडिसिन को चेंज करते हैं, मेडिसिन का आज अगर आपने डोजेस लिया, आपके सिम्टम्स अगर चेंज हुए तो एक्सरसाइजेस और एक्टिविटी भी चेंज होती है. कनेक्ट विथ योर फिजियो for correct form of exercises. Family members should participate in exercise and recovery process. Yes, they should learn the correct form. They should participate. It is not a simple way जिसमें फिजियो अकेले एक्सरसाइजेस करवा लें या मेडिकल प्रोफेशनल अकेला वो कर लें. फैमिली मेंबर को पार्टिसिपेट करना ही चाहिए. How family member can participate? By helping in doing correct activity at home, by timely action as suggested by medical profession, reporting the progress to make an informed decision. Yes, answer is perfectly fine. All of the above. ये सारे काम हैं जिसमें हम करेक्ट एक्टिविटी घर पे करने के साथ साथ मेडिकल प्रोफेशनल्स को मदद कर पाते हैं क्योंकि हम पेशेंट के साथ में सबसे ज्यादा समय. So all of the above is the correct answer. The majority of people have given the right answers, ma'am. Great. Kudos to everyone. अरे नहीं भाई. Thank you so much, Mr. Anand, for your insights and participating and giving your expertise in our first Healthcare Insight series. Thank- Could we have it on slide share mode, please? Yes, ma'am. So this is the details of HSSC where everybody can connect to us. You can take the screenshot and write back to us, go to our Facebook page, Instagram page, go to our website and LinkedIn and see what all activities are there, what are the upcoming webinars are there. But we have the next upcoming webinar from Dr. Therese K. Chaudhary, who is Director and Geriatrician on the topic of integrated and collaborative approach in geriatric care. I humbly request all the participants to scan this barcode and register yourself for our upcoming webinar. We're posing on the screen for in the 2 minutes. And meanwhile, Mr. Anand, thank you so much for your inputs. You could summarize, if you want to summarize any key takeaways for this session, sir. Thanks a lot, ma'am, for the summary. I would like to say only one single line. This 40-minute, 45-minute or 1 hour of session is just an initiation. I would request family member to connect with the health professional to get proper guidance and training to support. Similarly, I would request health professional to make family member as a part of team. So these are the vice versa thing. These are the two-way thing in which we can definitely strengthen our healthcare system in a very well manner by doing so. So this is really great, ma'am. This is really great. Thank you. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much. So please scan and register yourself for our next webinar. That's the second Healthcare Insight series on the integrated and collaborative approach in geriatric care. That is scheduled on 9th July
at 4 p.m. Thank you so much. Thank you. Thanks. Thanks a lot, ma'am. Thanks Thank to all participants. Thanks a lot. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir.